Assalamu alaikum guys, this is Muhammad Shiraz Malik from Park Automotive Trainers and Professional. It's been a long time since we produced any video because we were extremely busy in completing of our projects. Those were going on in Pakistan, and moreover that I have moved to Australia and I was actually extremely busy in my task completing and settling here, so that's why we couldn't produce many of the videos. Those are still pending, so we are just trying to cover everything as soon as possible since our 2022 is going to be finished. So hopefully we will produce lots of videos for you regarding automotive education, tutorials and many other things, and still we are preparing for ASE batch 5. So just keep watching our YouTube channel and connect with us on Facebook, either on the phone or on the message, so you will get update about ASE and upcoming useful videos relating to the automotives. Subscribe and visit our Facebook page and also YouTube channel. So today's topic is AC not diagnostic, for which we posted a couple of months ago that we will produce a video, but some of the hectic schedule, as I said before, that we couldn't produce, and now we are finally here to give you some tricks, tips and tutorial and education on diagnosing the AC system, which is actually a part 1 of AC system diagnostics, and how you want to go through to diagnose the basic AC system problem, and how you have to identify the customer concern, that a mechanic can see it from different aspect while the customer just explain it in his own way. Okay, so you have to filter actually that what the customer concern is according to your education, your qualification, and by using your experience and expertise. So let's come on the car and we will do some practical work over there on car, and you can understand. And obviously the further lecture will be in Urdu for my Pakistanis, so you can understand it really well. Everyone can understand, because Urdu is our native language and we should continue in that. Thank you गाइस। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर जो है इसको जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए आए हैं गाड़ी में कि कहाँ पर जो है ना हमारा प्रॉब्लम है। अगर कस्टमर आपसे कह रहे हैं AC इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है बीइंग ए ऑटोमोटिव प्रोफेशनल, बीइंग ए ऑटोमोटिव टेक्नीशियन। तो देखिए, अब ये AC का जो है स्विच है, यहाँ पर बटन है, इसको मैंने प्रेस किया और इसके अंदर जो है ये देखें ग्रीन इल्यूमिनेशन जो है ये मेंशन कर रही है कि आपका AC ऑन हो चुका है। बट यहाँ पर देखें आपका ब्लोअर का जो ये फैन स्पीड कंट्रोल करने का जो नॉब है, इसको कहीं पर भी आप हाई स्पीड पे करें या फिर आप लो स्पीड पर करें, किसी किस्म की एयर ब्लो जो है वो आपको फील नहीं हो रहा है यहाँ पर वेंट में, AC वेंट में, और ना ही AC काम कर रहा है। इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें कि अगर आपका AC ब्लोअर काम नहीं करेगा, AC ब्लोअर आपका स्विच ऑफ होगा, तो डेफिनेटली आपका एयर ब्लो तो हो ही नहीं रहा, लेकिन दूसरे एंड पे आपका कंप्रेसर भी इंगेज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके रेफ्रिजरेंट सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में, या जो रेफ्रिजरेंट ट्रैवलिंग होती है डिफरेंट फेजेस में, जब कंप्रेसर आपका इंगेज होता है, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम होती है और उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। आपके AC ब्लोअर में अगर प्रॉब्लम है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, जिसको आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपका देखें, मैं अगेन बता रहा हूँ, AC आपका स्विच ऑन स्विच ऑफ प्रॉपरली हो रहा है, बट देयर इज नो एयर ब्लो, ठीक है। इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे आप जो है नैरो डाउन कर सकते हैं अपने डायग्नोसिस को कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। अगर इस किस्म की कंडीशन होगी तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो है आपके जो है ब्लोअर में प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप ब्लोअर को असिस करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद देन फिर फर्दर डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये मैं पहले ही जो है वो डायग्नोस कर चुका था, तो आप इसको जो है ना जस्ट जो है वो जो है ना शॉर्ट करने के लिए ये एक कंपोनेंट है जिसको हम जो है वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं। AC ब्लोअर में जो है वो ये यूज़ होता है, और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डिफरेंट कंस्ट्रक्शन का जो है वो जो है वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ होता है। तो ये फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ कराने के लिए, और होंडा सिविक प्रोस्मेटिक में इसकी कुछ जो है वो ये लोकेशन होती है। देखें यहाँ पर एक जो है वो
ऑलरेडी पहले से जो है वो ये लगा हुआ है। ये कंडीशन इसको मैं यहाँ पर निकाल के, जो कि हमारा फॉल्टी है, हमारा फ़ैन जो है वो काम नहीं कर रहा, मैं इसको ऑलरेडी डायग्नोस कर चुका हूँ, जिसके लिए हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप हमारे वर्कशॉप में या किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एसी सिस्टम के, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए। ये मैंने करेक्ट वाला जो है वो इसमें इंस्टॉल कर दिया है, और अब इसको इसकी लोकेशन पर हम जो है टेम्परेरी फिक्स करते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, तो अब हमने जो हमारा जो करेक्ट जो सही जो हमने जो न्यू ब्लास रजिस्टर लिया था, अपना रजिस्टर लिया था एसी ब्लोअर के लिए, वो हम इंस्टॉल कर चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारी आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से हमें जो है ना डिफरेंस फील होगा। जो पहले वाली कंडीशन थी उसमें हमारा जो रजिस्टर था वो फॉल्टी था। देखिए अब यहाँ पर भी एसी ऑन, हमने ये फ़ैन को स्टार्ट किया, देखिए आप जो है ना अब आप नॉइज़ सुन सकते हैं। एसी आपका ऑन हो गया। इवन कि अगर एसी ऑन नहीं भी है तो आपका ब्लोअर काम करे, देखिए आपको जो है ना नॉइज़, और यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है वो एयर ब्लो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, हम जो है एयर ब्लो को जो है वो फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और हमारा फ़ैन काम कर रहा है। देखें जैसे मैंने स्पीड इस तरीके से अब ये हमारा काम करना शुरू हो गया। ठीक है, और ये हमारा एसी ऑन ऑफ। और अगर हम एसी ऑन करेंगे तो कोल्ड एंड हॉट एयर जो है वो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वेरिएबल हम जो है वो उसको फील कर सकते हैं। और जब हम एसी ऑफ कर देंगे तो जस्ट एयर ब्लो भी हम जो है ना वो उसको जो है वो आप फील कर सकते हैं वेंट्स के अंदर। चारों वेंट्स के अंदर जो है वो हमारे पास एयर ब्लो हो रहा है। तो ये तरीका है। नॉर्मली हमारे पास जो एयर ब्लोअर फ़ैन होता है इसी का, उसके अंदर यही रजिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और इसके फॉल्टी होने के जो है मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, अप एंड डाउन होता है, वेरिएबल जो है वो रजिस्टर ज़रूरत होता है अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशन ऑफ एसी और अकॉर्डिंग टू दी यूजेज ऑफ एसी। तो इसलिए इसके जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्दर ये इसको मेजरमेंट कैसे की जाएगी, इसकी इंस्पेक्शन कैसे की जाएगी, उसके लिए जो है वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम ASC बैच 5 स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपको इंशाल्लाह रजिस्टर्स को कैसे इंस्पेक्ट करना है, वायरिंग्स को कैसे इंस्पेक्ट करना है, कंपोनेंट्स को कैसे देखना है, पावर सप्लाई कैसे चेक करनी है, इस सब की एक डिटेल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसके अंदर मौजूद है।